वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शोभज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे Thank you for starting on the right note, Kiran and Mr. Desai. The Indian National Congress ecosystem has always been a mass movement. Its driving force being the freedom struggle before 1947 and the protection of our constitutional values after independence. One of its frontal organizations is a cadre-based organization, though, the Congress Seva Dal. The Seva Dal has had a distinguished history since 1924. Who better to talk about it than its president, Mr. Lalji Desai? Mr. Desai leads the Seva Dal since May 2018 and has worked in community organization ever since he completed his education. His career saw him head globally renowned NGOs. Notably, he was advisor to the Committee on World Food Security for 4 years. Mr. Desai joined the INC as General Secretary of the Gujarat Pradesh Congress Committee and was a key part of Mr. Rahul Gandhi's campaign team in 2017, which almost won the Gujarat elections. After his taking over the presidency of the Seva Dal, Mr. Desai has built a roadmap to ensure that it reaches every common man in the country. He has painstakingly fashioned 7 layers, beginning with the national level all the way down to the grassroots. Each member in the Seva Dal plays an active role in various functions in the organization. Mr. Desai has established social media and offline outreach and new wings in the Seva Dal to accommodate youth and women. That said, on behalf of the UWC, I would like to thank you all again for joining this webinar. And I invite Priyamvada to deliver the keynote in which she'll set the context for today's dialogue. Thank you, Santosh, for the introduction. Good evening, everyone. So today we have the Seva Dal president to give us a talk on how the Seva Dal was founded and how it's going to play a role in the coming elections. Seva Dal is not only the oldest frontal organization of the Congress, but also a cadre-based wing of the party. Over the years, the once powerful Seva Dal was reduced to the margins. But once Shri Rahul Gandhi took charge as a Congress president, he not only brought Seva Dal back to the mainstream, but he also made it central to the new era in the Congress. The recent times have been turbulent with BJP and RSS taking power. The BJP, ably backed by RSS, has managed to bring hypernationalism and majoritarianism as the new narrative. It seeks to redesign the very DNA of India and reimagine who we are as a nation. The battle becomes more difficult as Congress not only now needs to take on the election machinery of the BJP, but also the might of the RSS. It is that this role of the Seva Dal becomes more critical. With deep roots in the freedom struggle, the Seva Dal is the only answer to the RSS cadre. Today's webinar will evolve around how the Seva Dal prepares itself to take on the BJP-RSS combination in the months and years ahead. Without further delay, I now invite Mr. Desai
to share his thoughts with us. Thank you. धन्यवाद नंदा, धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम, जय हिंद सभी को। मैं अपनी बात की शुरुआत हिंदी में करूंगा और जहां कहीं ऐसा है कुछ सवाल होंगे इंग्लिश वगैरह में तो जरूर हम लोग इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, बट आई विल स्पीक इन हिंदी मेनली। एक तो सबसे पहले मैं इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आज देश को जरूरत है इस प्रकार के इनिशिएटिव की और इस प्रकार के लोगों की कि जो थोड़ा हट के सोचे। मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा मेरी बात का एक विचारक और प्रचारक, दो एक अलग सोच है। आरएसएस ज्यादातर वो प्रचारक पैदा करते हैं जिनको सोचना कुछ नहीं है, जो सोचा गया है, जो तय हुआ है उसी को प्रचार और प्रसार करना है, तो वो प्रचारक पैदा करने का काम करते हैं और उसीलिए उनके जो ज्यादातर लोग हैं उनको प्रचारक कहते हैं। जबकि सेवा दल में विचारक तैयार करते हैं कि हम लोग विचारने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करते हैं अपने कार्यकर्ताओं और अपने साथियों की कि आप खुद सोचिए कि देश का मतलब क्या है, देश कैसा होना चाहिए, मानवता का मतलब क्या है, मानवता क्या है। हम लोग जब बात करते हैं राइट्स की तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे जो यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या हैं, भारत के अंदर हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या हैं, अभी भी कहाँ कमी है जिसको सुधारने की जरूरत है। तो हम लोग अलग एक विचारक और प्रचारक वाले। मैं सेवा दल की हिस्ट्री से शुरुआत करूंगा कि जहां पर भारत में जब आजादी का जंग लड़ा जा रहा था उस समय पर एक आंदोलनकारी साथी जो है वो अनऑर्गेनाइज वे में आंदोलन कर रहे थे और काफी जगह पे ऐसा हो रहा था कि कहीं किसी का पुलिस स्टेशन जला दिया, कभी किसी पर अटैक कर दिया, कभी किसी गोरे को मार दिया, किसी लोगोर ने गोली चला दिया। तो एक बहुत ही वायलेंट प्रकार का अनऑर्गेनाइज वे में, और कभी एक पूरे लगता नहीं था कि इंडिया इज यूनाइटेड, लाइक इट वाज लाइक अ डिसेंट्रलाइज्ड वे में था। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा है, बट अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन हो तो बहुत बड़े नुकसान होते हैं और वही नुकसान हमारे आजादी के जंग के आंदोलन में हो रहे थे। उसको एक ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ने के लिए, एक सस्टेन जो मूवमेंट होता है वो करने के लिए जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस से लेकर हमारे बड़े बड़े दिग्गजों ने सोचा कि वी नीड टू डू समथिंग, कि कैसे हम लोग इसको नॉन वायलेंट मूवमेंट के रूप में और एक सस्टेन मूवमेंट के रूप में, डिसिप्लिन मूवमेंट के रूप में करें। तो हार्डिकर जी ने उनकी जो एक बनाई हुई संगठन था जो सेवा दल था, उस संगठन के जरिए पहली बार उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और खास करके उन्होंने जो जिस प्रकार से एक डिसिप्लिन फ्रंटल के रूप में काम शुरू किया। और 1923 में नागपुर की जेल में जब हार्डिकर जी थे तो वहां पे जेल के अंदर रह के ये सोचा कि वी नीड टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन लाइक समथिंग कॉल्ड सेवा दल, जो सेवा करें, खास करके जो ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं और उनको तैयार करें, कैडर बिल्डिंग का, लीडर बिल्डिंग का, वो पूरा प्रोसेस करें। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और धीरे धीरे उसका जब उसका स्थापना हुआ 1923 तो वहां पे नाम दिया गया हिंदुस्तानी सेवा दल। हिंदुस्तानी सेवा दल 1930 में ऑफिशियली जब इसको एक और जिम्मेदारी मिलती है और वो कांग्रेस में जब मर्ज होता है, क्योंकि पहले एक फ्रंटल के रूप में इंडिपेंडेंट अलग काम कर रहा था, 1930 के अंदर महात्मा गांधी के सुझाव पर इसको कांग्रेस के अंदर इसका वन ऑफ द फ्रंटल के रूप में, मतलब फर्स्ट फ्रंटल के रूप में इसको लिया गया। तो उस समय पे सेवा दल का रोल क्या था? मूलतः रोल था एक कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको बनाए रखने का, कि कहाँ क्या चल रहा है वो संदेश वगैरह वहां पहुंचाने का। साथ साथ में जब भी लड़ाई होती है तो फ्रंट पे रहकर, तो पहले सेवा दल के साथी जो ट्रेन लोग होते थे वो पहली लड़ाई में आगे चलते थे। और इसलिए हम लोग बहुत बार नारा भी बोलते हैं और कहते थे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। जब लड़ना है इन चोरों से, आवाज उठेगी जोरों से। तो ये जो नारा है वो नारा के पीछे भी इतिहास है कि हम लोग जब गोरों के सामने लड़ते थे तो लाठी खाते थे, गोली खाते थे, जेलों में जाते थे, यातनाएं सहन करते थे, पर कभी कोई माफीनामा नहीं लिखता था, कभी कोई दया की अर्जी या भीख नहीं मांगता था। और एट द सेम टाइम उधर हिंदू महासभा और आरएसएस जिसको 1925 में जो बना, वो
उसका काम करने का तरीका अलग था। मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेना है। जब भी कांग्रेस का कोई मूवमेंट का वहां पे बात आता है तो वो बोलते थे कि नहीं, वी आर नॉट सपोर्टिंग, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। तो आरएसएस और हिंदू महासभा तब भी सरकार के साथ खड़े रहते थे। और जबकि सेवा दल है पूरे देश भर में कांग्रेस की इस मूवमेंट को, आजादी की जंग को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को क्यों देश के लिए लड़ना है और क्या लड़ाई है और कैसे लड़ना है उसकी ट्रेनिंग करता था। उसके लिए गानों के जरिए, स्लोगन्स के जरिए, गांव गांव में यात्रा के जरिए, प्रभात फेरी निकालकर लोगों में अपना हाथ से लिखा हुआ मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट करके, क्योंकि उस समय पे आप जानते हैं कि व्हीकल उतने थे नहीं, टेलीफोन वगैरह का वहां पे कम्युनिकेशन का स्थान। फिर भी इस पूरे भारत में जहां पे ना ट्रांसपोर्टेशन था, ना कम्युनिकेशन था, ना ही कोई हमारा टेलीविजन था, और आजादी के जंग को हर गांव तक अगर पहुंचाना है तो उसकी ये पूरी सिस्टम है वो सेवा दल के जरिए बनी हुई थी। और हर गांव में 1930 में जो डिक्लेयर हुआ था कि हर गांव में हम तिरंगा लहराएंगे, जहां शहर है तो तिरंगा लहराएंगे, भले ही ब्रिटिश अपना ध्वज लहराए पर ये लोग तिरंगा झंडा लहराने का काम, सेवा दल का मुख्य काम तिरंगा झंडा फहराना है, लोगों को इकट्ठा करना है और वहां तिरंगा झंडा फहरा कर आजादी के जंग में लड़ाई जो है उसका कम्युनिकेशन करना है। तो ये बहुत एक अच्छे तरीके से सुचारू व्यवस्था था। 1947 में आजाद होने से पहले जितनी भी बड़ी मूवमेंट हुई, इवन इफ यू सी दांडी यात्रा जब आप देखोगे तो उसमें ज्यादातर लोग सेवा दल के आपको देखने को मिलेंगे। जो भी चंपारण का सत्याग्रह हो या खेड़ा सत्याग्रह हो, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप थी उस समय पे जंग में लड़ने वाली, उनको पता था कि अगर मूवमेंट को सही तरीके से चलाना है तो सेवा दल है उसकी प्रथम हरोड़, मतलब फ्रंट लाइन के रूप में काम करेगा। तो ये रोल सेवा दल होता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मैं ये कहूंगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति वो सेवा दल के कार्यकर्ता रहे थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री वो सेवा दल के पहले अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो एक बड़ी हमारी धरोहर है, बड़ी विरासत ऐसी है जो एक वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, इवन सुभाष चंद्र बोस सेवा दल के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये हर कोई बड़े जो नेता रहे हैं वो सेवा दल के अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं और वो लगातार खुद भी प्रशिक्षण लिए हैं। इवन अप टू 1985 ये पूरी प्रक्रिया चलती रही। और राजीव जी जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और हर एमएलए के लिए सेवा दल का प्रशिक्षण कंपलसरी किया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि सेवा दल का प्रशिक्षण का मतलब क्या है। बेसिकली हम 3 चीजों पर फोकस करते थे उस समय पे। शरीर सबल, यानी कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए क्योंकि आपको अलग अलग मूवमेंट्स में हिस्सा लेना है, देश की, राष्ट्र की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। तो शरीर सबल, मन सतेज, सॉरी बुद्धि सतेज और मन पवित्र, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो हाई होना चाहिए, मतलब दे शुड बी इंटेलेक्चुअली वेरी शार्प। एंड मन पवित्र मतलब आप मन से, दिल से जो है एक प्रिंसिपल्स में, वैल्यूज में बिलीव करने वाले एक वैल्यू बेस्ड लीडरशिप के रूप में होना चाहिए। तो तीनों का कॉम्बिनेशन उस समय पर हुआ करता था जिनको सेवा दल में मौका मिलता था और यही प्रशिक्षण सेवा दल के जरिए दिया जाता था। अनफॉर्चुनेटली राजीव जी के जाने के बाद धीरे धीरे सेवा दल का तवज्जो जो है वो कम हुआ और सत्ता में लगातार कोई भी ज्यादा समय रहते हैं तो जो आइडियोलॉग अपना जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आइडियोलॉजी को प्रचार प्रसार करते हैं वो धीरे धीरे जो है वो उसको कमजोर मतलब होते हैं, आप भी समझते हैं। और पहले हर राज्यपाल, हर चीफ मिनिस्टर, उस सबको कि आपका सेवा दल का ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं हुआ हो, सब कुछ पूछा जाता था, परखा जाता था। तो एक तरीके से सेवा दल वाज लाइक अ पावर हाउस। मैं बोला कि पावर सेंटर नहीं, दैट्स डिफरेंस बिटवीन द पावर सेंटर एंड पावर हाउस। तो एक पावर हाउस होता था जो आपके पावर स्टेशन जो होता है जो पावर सप्लाई करता है। सो एक ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स कैडर और लीडर जो है वो कांग्रेस के लिए तैयार करने का, और बूथ बूथ में सेवा दल होता था जिसकी वजह से हर गांव में सेवा दल दिखता था। सेवा दल मुख्य तौर पे 2 प्रकार की भूमिकाएं करता था, संघर्ष और रचना। जहां अन्याय है, अत्याचार है या असमानता है या कुछ भी चीजें ऐसी है जो लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वो संघर्ष करता था। साथ साथ में वो रचना के कार्य, शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में, पहले गांव गांव में जो आश्रमशालाएं खुली या गांव गांव में जो सामाजिक संस्थाएं खुली, सरोकार, सामाजिक सरोकार की, ज्यादातर जो है वो सेवा दल के कमिटेड लोगों ने शुरू किया था। तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत काम करने वाले सब लोग सेवा दल के अंदर ज्वाइन करना तब पसंद करते थे। बात का समय ऐसा हुआ, मैं ये बात का स्वीकार करता हूं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ
सेवा दल का एक सेरेमोनियल रोल रह गया, जिसमें ध्वजवंदन करना है, नेता को गार्ड ऑफ ऑनर करना है, स्टेज को मैनेज करना है, और जब स्टेज पे नेता आता है तो उसकी सुरक्षा करना है। सो वी वर लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, चपरासी, सैल्यूट करने वाला एक बंदा, और एक पानी पिलाने वाला, दरी बिछाने वाला, या गार्ड ऑफ ऑनर करने वाला। तो लिमिटेड रोल में फंस गए, और ज्यादातर सेवा दल के लोगों की भी एक कमी रही कि हम जनता की सेवा, राष्ट्र निर्माण के काम को भूलकर हम नेता सेवा में और नेता के चक्कर लगाने में एक बीच वाला समय चला गया, जिसकी वजह से सेवा दल कमजोर हुआ। और सब लोग कहते हैं, इवन इंदिरा जी भी कहती थी कि सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। हर किसी ने सेवा दल के बारे में बहुत, मतलब वहां तक भी माना जाता था एक समय पे, जब 1970, 77, 75, 77 में कांग्रेस टूट के टुकड़े उसके हुए, तो कौन सा पक्ष जो है उसको मान्यता मिलेगी और कौन सा पक्ष सही है कि ये रियल कांग्रेस है। तो जहां सेवा दल खड़ा रहता था उसी को एक रियल कांग्रेस माना गया था, और हर कोई इंतजार करता था कि सेवा दल का प्रेसिडेंट कौन से धड़े में जाकर खड़ा रहता है। तो उस समय पे जहां इंदिरा जी थी वहां पे इनामदार जी जाके खड़े हुए, तो अपने आप में यही कांग्रेस सच कांग्रेस है और बाकी लोग नहीं है। तो ये इतनी इज्जत, इतनी अहमियत रखने वाला संगठन बीच में प्रशिक्षण खत्म हुआ, काम जो है वो जो जनता की सेवा का या राष्ट्र निर्माण का है वो खत्म हुआ, और बहुत ही लिमिटेड रोल में आ गए थे। तो कार्यकर्ता भी ऐसे मिलने लगे, क्योंकि आपको किसी को सैल्यूट करना है, पानी पिलाना है, चाय पिलाना है, तो आपको कैसा उसका वर्कर मिलेगा। तो धीरे धीरे वैसे वर्करों की ज्यादा होने लगी, और एक संगठन एक समय पे लाखों में कार्यकर्ता वो वॉलंटियर्स रखने वाला संगठन एक बहुत ही लो प्रोफाइल या बन गया, या उसको लो इम्पोर्टेंट वाला बन गया, और ऑलमोस्ट लाइक बंद सेवा दल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए उसको लेकर डिस्कशन होने लगा। और आरफा खातून जो है, उन्होंने तो द वायर में एक आर्टिकल 2017 के मार्च में लिखा था कि एक समय जिससे गोरे थर थर कांपते थे, वो संगठन आज अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। उस सेवा दल के बारे में वो एक उनका आर्टिकल था। ये सब पढ़ के मुझे भी बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि मैं बचपन में सेवा दल के साथ जुड़ा हुआ था, और मुझे सेवा दल के लोग बचपन में ट्रेनिंग भी देते थे, और सब कुछ वहां सीखने को मौका मिलता था। तो आई फेल्ट बैड कि ये सेवा दल का ऐसा हालत कैसे हो सकते हैं। और मैं वहां तक कह सकता हूँ कि सेवा दल के ट्रेन लोगों ने हमारे एरिया में, अगर स्कूल नहीं खोली होती तो मैं भी नहीं पढ़ पाता, मैं भी आज भेड़ बकरी चरा रहा होता। तो ये क्रेडिट गोज टू सेवा दल के उस समय के कमिटेड वर्कर्स के, जिन्होंने हमारे गांव वाले में, इंटीरियर एरिया में, जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं था, वहां पे जाके स्कूल बनाया, और हम जैसों को पढ़ने का मौका मिला। तो ये सेवा दल का भूमिका था। खत्म हुआ, कमजोर हुआ। राहुल जी प्रेसिडेंट बनने के बाद, मतलब जब सोनिया जी प्रेसिडेंट बनी थी तब भी उन्होंने 2 बार ट्राई किया, बट पावर स्ट्रक्चर में शायद कहीं ना कहीं उतना नहीं हो पाया। बट राहुल जी ने एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के रूप में मेरे जैसे एक एक्टिविस्ट को, आई वाज इन एक्टिविज्म फॉर 26 इयर्स, ज्यादातर लैंड राइट और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर देश और दुनिया में काम करता था। एंड आई वाज लीडिंग अ वन लैंड राइट मूवमेंट इन गुजरात सक्सेसफुली। We defeated Modi. I won't say I, because I was leading that movement, but it was people who was fighting for a land right movement, और नारा था जान देंगे जमीन नहीं। जैसे आज मैं कब 2-3 दिन से यहाँ पर जा रहा हूँ फार्मर्स मूवमेंट में, तो आई कैन सी दैट कि फार्मर्स मूवमेंट कितना स्ट्रांग होता है। जब हो जाता है एक बार शुरू, तो उसको रोकना मुश्किल है। सेम वे वी डिफीटेड नरेंद्र मोदी इन 2013, and somehow Rahul ji came to know that this guy, the activist, is working on certain thing. तो मुझे वो कांग्रेस में आने का मौका मिला, और 2 साल के बाद मुझे ये जिम्मेदारी बड़ी मिली। तो सिंपली मैंने 2 चीज उनको कहा। ही गेव मी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म सेवा दल। तो मैंने कहा कि वी कैन ट्रांसफॉर्म सेवा दल, बट वी नीड 2 things, एंड ही सेड व्हाट। आई सेड कार्यकर्ता का स्वाभिमान और संगठन की स्वायत्ता। So you need an autonomy of our organizations and dignity of your volunteers or the office bearers. You cannot have like a revolutionary organization if it is not autonomous, and if worker doesn't have that dignity. तो राहुल जी के बारे में मतलब मैं इतना ही कहूंगा कि मैं सिर्फ वो एक ऐसा लीडर है जिसकी बदौलत मुझे लगता है कि आई शुड बी इन कांग्रेस। आइडियोलॉजिकली कांग्रेस ही हो, फिर भी एक होता है एक स्पेस देना, एक आपकी जो
कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए खुल के अपॉर्चुनिटी देने का काम कर रहे हैं। ही सेड, लाल जी, गो अहेड, ब्लैंक चेक फ्रॉम माय साइड। तो ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने द वे he gave this authority to Sevadal, and uske baad I think now we have transformed like 600 district in last 2.5 years, and हमारा लक्ष्य है in several layers of the organization जो है before 2021 के दिसंबर तक हमको पहुंचाना है, ताकि हम सेवा दल को जो 100 years हो रहे हैं within 2 years, so we want to start celebrations. सेलिब्रेशन का मतलब ढोल बाजे बजाना या थाली और वो घंट बजाना नहीं है। हमारा सेलिब्रेशन का मतलब होगा हम भारत में यात्राएं निकालेंगे, ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में हम किसानों के अधिकार को लेकर, मजदूरों के मुद्दों को लेकर, हम शिक्षा के, मतलब हर जो मुद्दा है, जनता के मुद्दे हैं, वो हमारे मुद्दे हो। और कांग्रेस का सेवा दल का कार्यकर्ता है उस नारों के साथ, और ये नारे हैं कि देश का झंडा तिरंगा अब नहीं चलेगा दो रंगा। सो यू नो इट, लाइक दैट इज डिफरेंस बिटवीन द दो रंगा एंड तिरंगा। कवि कबीर ने भी कहा है कि दो रंगों का विश्वास न करिए, एंड भाजपा का झंडा दो रंग का है। आरएसएस की सोच जो है वो दो रंगी है, और वैसे नारंगी है, बट उसको दो रंगी भी कहते हैं। तो ये जो लड़ाई है, कि इस दो लड़ाई विचारधारा की है, उसको हम लोग जनता के बीच में ले जाए। एंड नॉर्मली कांग्रेस के लीडर्स हम जब खड़े होते तो बोलते हैं कि वी आर नॉट अ कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अ मास मूवमेंट, बट आई डोंट अग्री विद दैट। मैं हमेशा ये कहता हूं, यू कैन नॉट हैव अ मास बेस्ड मूवमेंट या मास मूवमेंट विदाउट हैविंग अ कैडर। सो यू नीड टू हैव अ, like if you have a good leader you will have a good cadre, and if you have a good cadre you will have a mass movement। तो एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन वे में हम लोग इस मूवमेंट को आगे जाने का काम कर रहे हैं, और हम पूरा एक मिशन के साथ चल रहे हैं। शैम्पी थोड़ा जी भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि मिशन 10 मिलियन बाय 2021, और उसके बाद हम लोग जो है वो 22 से अपना सेलिब्रेशन शुरू करेंगे जनता की लड़ाई का। तो संघर्ष एंड रचना, ये दो काम करना है। सेवा दल ने जो भूमिका थी लिमिटेड वाली, वो हटा के गार्ड ऑफ ऑनर बंद कर दिया है। जो ड्रेस का जो हमारा एक लिमिटेशन था कि यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर ड्रेस कोड ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसको हमने थोड़ा लिबरल कर दिया है कि भाई नहीं, you can wear any clothes, but when there is a flag hosting you can wear formal special, otherwise जनता की सेवा के लिए आप कौन से कपड़े में हो, that doesn't matter। so हम लोगों ने ये नेता सेवा की जगह पे जन सेवा का लक्ष्य बनाया है, नेता सुरक्षा की जगह पे राष्ट्र निर्माण का हम लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया है। तो जनता जन सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, और नेतृत्व निर्माण के माध्यम से संगठन निर्माण, और वही संगठन निर्माण जो है वो जनसेवा और राष्ट्र निर्माण का काम करे। तो ये चारों चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, इट्स इंटरलिंक है। कभी कभी वो सुपर इम्पोज भी कर सकते हो। यू कैन नॉट हैव अ नेशनल बिल्डिंग विदाउट हैविंग लाइक सोशल सर्विस। जनता के लिए आप अगर काम नहीं करोगे तो राष्ट्र निर्माण हो नहीं पाता है। और आप, if you don't have a good leaders, if you don't do a focus on a leadership development, you cannot develop your organization, and if you don't develop your organization you cannot have a great leadership। so संगठन से लीडरशिप होती है, और लीडरशिप से संगठन होता है। कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन खड़ा होता है, और संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम होता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये 4 पिलर पे जन सेवा, राष्ट्र निर्माण, संगठन निर्माण और नेतृत्व निर्माण करने का तय किया है। और ये करने के लिए सोशल मीडिया का एक अलग विंग बनाया हुआ है, जो हमारी पूरी एक वॉलंटरी टीम देख रही है, और कम्युनिकेशन टीम जो एक है जिसको किरण लीड कर रहे हैं। तो ये 6 हमारे मुख्य डिपार्टमेंट के जरिए हम अब जन सेवा को मुख्य लक्ष्य अपना मान रहे हैं। बदलाव लाना है तो जन सेवा ही राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और जन सेवा में 2 प्रकार की संघर्ष और रचना के कार्यक्रम हम लोग करेंगे। एक और चीज जो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप ज्यादातर क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में हम लोग जाएंगे। राष्ट्रवाद चाहिए या देश प्रेम? तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर देश भर में एक बहस छेड़ना चाहते हैं। पर्सनली हम लोग और बाकी सेवा दल में हम लोग डिबेट डिस्कशन के जरिए एक चीज पे कि वी आर नॉट अ राष्ट्रवादी, हम तो देश प्रेमी हैं। राष्ट्रवादी होना मतलब आप दूसरे राष्ट्र को आप कमजोर कहोगे, दूसरे राष्ट्र को गाली बोलोगे, मतलब दूसरे राष्ट्र के बारे में आप बहुत गंदा बोलोगे, और तब जाके आप एक राष्ट्रवादी बनोगे। हम कहते हैं हम देश प्रेमी हैं। हम देश प्रेमी का मतलब है
मैं मेरे देश को प्यार करता हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे देशों को धिक्कार करता हूं. So I don't hate other countries. If I start hating other countries, the people of other country will start hating India. So हम लोग ये हेटरेट का राजनीति को खत्म करना चाहते हैं. हम एक प्यार वाला राजनीति, एक दूसरे को रिस्पेक्ट वाला राजनीति को लाना चाहते हैं, एक टॉलरेंस का राजनीति लाना चाहते हैं. और इस देश को प्रदेश, भाषा, जाति और धर्म के नाम पर बांटकर जो इमोशनल पॉलिटिक्स खेला जाता है, उसकी जगह पे वी वांट टू स्टार्ट मुद्दों की राजनीति. जनता के मुद्दों की बात करेंगे. ये भाजपा स्मशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अली बली, ये सब करता रहेगा. ये कब्रिस्तान की बात करता रहेगा, या उनको जो मर्जी है वो अलग अलग, वो लगातार जब भी इलेक्शन आता है तो वो मुद्दों से भटकाएगा. बट वी विल बी प्रिपेयरिंग अवर टीम इन फ्यूचर कि जो उनको मुद्दे से नहीं भटकने दें. बोले कि बात करेंगे, आप बात करोगे दंगों की, हम बात करेंगे भूखे नंगों की, हम बात करेंगे किसानों की, हम बात करेंगे मजदूरों की, हम बात करेंगे रोजगार की, हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की. तो हम एक्चुअली पीपल्स एजेंडा जो है, नॉट लाइक पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा. पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा सेफ्रोनाइजेशन हो सकता है या कोई और इज्म हो सकता है, बट पीपल्स एजेंडा क्या है, द बेसिक नीड एंड देन बियॉन्ड, जो देश को आगे बढ़ाने का है. तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे. और ये सेवा दल ये करने के लिए 7 layers ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड 5 layers ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें हम सहयोगी सामर्थ्य से शुरू कर विशारद एंड राष्ट्र रत्न से लेकर तपस्वी. सो वी आर लुकिंग फॉर अ पीपल की जो देश की सेवा करना चाहता है. इस देश से अगर हम प्रेम करते हैं तो हम देश की सेवा के बारे में हम लोग लगातार ऐसे वॉलंटियर्स को ढूंढते भी हैं. आप हम मिलकर अगर कुछ कर सकते हैं तो ये बहुत मतलब इस देश के लिए, और खास करके वर्तमान समय में, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, आप सबको पता है. तो और मैं मोदी और शाह को गुजरात में बड़े बाखूबी देखा भी हूं. मूवमेंट में उनको परास्त किया हूं, पॉलिटिकली परास्त नहीं कर पाए हैं. लास्ट टाइम थोड़े से उसके लिए रह गए, बट मूवमेंट में उनको 2 बार झुकाया है. और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आने वाले समय में हम उनको पॉलिटिकली भी हरा सकते हैं और मुद्दों की राजनीति में हम उनको जरूर हरा सकते हैं. इमोशनल कार्ड्स में, क्योंकि देश भर में डिफरेंट पार्टीज है. कोई पार्टीज प्रदेशवाद करती है, चाहे वो दक्षिण की हो या पूर्व की हो या पश्चिम की हो, उत्तर की हो, अपने अपने राज्य के बारे में बात करती है. तो दे गो बाय देयर प्रदेश. कुछ पार्टियां हैं सिर्फ वो दलित या मुसलमान या यादव या जादव और वो वाली जातियों की राजनीति करती है. तो कोई भारतीय जनता पार्टी और संघी और वो लोग जो हैं शिवसेना से लेकर बाकी और सारे MIM हो या दूसरे पार्टीज हो, वो धर्म की राजनीति करते हैं. आई थिंक कांग्रेस एंड एक लेफ्ट वाले जो हैं कि ये पार्टियां हैं जो पूरे भारत की, हर समुदाय की, हर धर्म की, हर प्रदेश की बात करते हैं. और वी वांट लाइक दोस काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जो आइडियोलॉजिकली, तो दे थिंक उनको मानवतावाद पता हो, उनको विश्व कुटुंबकम का पता हो, उनको भारत का पता हो, और भारत में रहने वाले हर अलग अलग संस्कृति और समाज हैं जिसके बारे में उनको रिस्पेक्ट हो, ना कि कोई एक बड़ा एक छोटा वाला जिनका सोच हो. तो ये करने के लिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आप आइए, जुड़िए और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे. आप सबका धन्यवाद. मैं सवाल जवाब के लिए मैं आपके बीच में. धन्यवाद लालजी देसाई जी, आपके इस विस्तृत जानकारी के लिए. आशा करते हैं कि 2024 में कांग्रेस, RSS और बीजेपी के एजेंडे को हराकर एक लोकवादी और एक राष्ट्र प्रेमी जैसी एक ऐसी सरकार बनाए. तो हम जरूर आपसे जुड़ना चाहेंगे. और कांग्रेस की UW की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. अब I would like to start the question answer session now. So the first question is from Santosh. Is Santosh there? Please can someone unmute him? Yeah. Yes. Yeah, Santosh, you can go ahead with your question. Thank you, Priya, and thank you, Mr. Desai, for that wonderfully articulate exposition of what the Seva Dal stands for. That, in fact, is the subject of this first question that a member asked us to ask you.
It seems to many of us that the Sevadal is heavily focused on building the party through ideology and service. How does it plan to attract youth and people in urban areas to its organization? Yeah. Thank you. That is a good question also, and it is like a big challenge for any political party how to attract youth for that ideology which you believes in. तो उसको लेकर हम लोग ने अभी सेवा दल में earlier it was like there was no motivations for youngsters to join, but now we see that the youngsters are joining because there was some barriers. The one was the dress code was a barrier. The salute was another barrier, and then also the like serving to the netas, like pani pilao, chai pilao, neta service to the netas. So another, so the three barriers that we have removed, and we said, okay, we we are not here to serve netas. We are not here to just give a security to netas or the salute to the netas, and we are here to serve for our nations, for the people of India. So अभी वो उनको बहुत attract कर रहा है, and many youngsters, even like Assam is now. Recently, I got a call from a general secretary in charge of Assam. He said, Lalji bhai, your young brigade, like a Sevadal young brigade now we have, and that is like with the blue jeans, white t-shirts and sports cap. वो जब निकलते हैं तो फिल्म स्टार जैसे भी लगते हैं सब लोग, और अपने आप में मतलब किसी ने कहा कि आप एक फैशन टाइप का कोई फैशन डिजाइन, एक डिबेट हुआ था टीवी में. somebody says if आपने बड़ा फैशनेबल ड्रेस कोड लाए हैं, मतलब वी वांट टू जॉइन, वी वांट टू लिंक आवर पैशन एंड फैशन टुगेदर. सो इस फैशन को पैशन के रूप में जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं. और वी आल्सो गिव अ मैसेज टू ऑल यंगस्टर्स, द ब्लू जींस इज अ सिंबल ऑफ अ हार्ड वर्क and also the symbol of a common people, symbol of a like kind of a work that wherever you, I mean anywhere you can go and sit and work with the people. and वो सब लोग पहनते हैं, मजदूर से लेकर मिल मालिक तक और किसान से लेकर फिल्म स्टार तक. so we said we want that kind of a dress code. तो अभी youngsters असम में जो जनरल सेक्रेटरी की ओर से मुझे कॉल मिला, वो बोले लालजी भाई मैं आई एम गोइंग टू कंप्लेन बॉस. मैं बोला क्या होगा? बोला ये लालजी भाई की सेवा दल की यंग ब्रिगेड की दुकान बंद कर दो, नहीं तो बाकी सब दुकानें बंद हो जाएंगी. सो यंगस्टर्स, आई मीन इट वाज लाइक वो बहुत ही लाइटर उसमें कह रहे थे अच्छे से मुझे वो. देन ही कांग्रेचुलेटेड टू वहां का यंग ब्रिग जनरेशन का है. सेम वे राजस्थान में अभी नाउ वी हैव 35 इयर्स यंग द स्टेट चीफ. नॉर्मली स्टेट चीफ बनने के लिए आपको 65 साल का इंतजार करना पड़ता था. सो मेनी ऑफ द स्टेट नाउ वी हैव those kind of a people who is in a leadership. और वो बड़ा revolutionary काम वहां पे शुरू किया है, और 5.5 लाख का ऑलरेडी मेंबरशिप युवाओं का वो लोग कर चुके हैं. और दे हैव अ टारगेट लाइक 11 लाख वॉलंटियर्स को वो लोग सिर्फ राजस्थान में जोड़ने का. सेम वे in other states also. I mean, I won't say that every state is equal, but we have another norm now कि युवाओं को लाने के लिए कि ब्लॉक लेवल the president of the Seva Dal will be a below 40 and the district level will be a below 45. So सेवा दल ने पहली बार ये काम किया है कि हम हर जगह पे एक एज बार डाल रहे हैं ताकि हम न्यू जनरेशन को अंदर ला सके. सो आपका एजेंडा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका काम करने का तरीका अट्रैक्टिव होना चाहिए, और आपको वो फ्रीडम मिलना चाहिए, और उसके लिए कुछ नॉर्म्स होने चाहिए. एंड दैट वी हैव डन. सो नाउ द न्यू सेवा दल, मैं मेन सेवा दल में तो यंगस्टर यंग आ रहे हैं, साथ साथ में यंग ब्रिगेड बनाए हैं. विमेन के लिए एक स्पेशल, क्योंकि वो सम इश्यूज कि विमेन कम जुड़ती थी और कम बार आ रही थी, क्योंकि जब आप एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो मुश्किल. तो नाउ वी हैव अ विमेन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, सो यंग विमेन आल्सो ज्वाइनिंग सेवा दल. अर्बन एरिया के लिए जो आपने कहा, आई मीन इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट टास्क. मैं इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि इट्स वेरी इजी फॉर लाइक सेवा दल और कांग्रेस पार्टी की रूरल एरियाज में और सेमी रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में हम लोग सक्सेसफुली इसको कर पाते हैं. जो अर्बन एरियाज है वहां पे वी नीड टू हैव अ मोर फोकस, मोर अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स जो युवाओं को अट्रैक्ट कर सके. अब शुरुआत किया है, लाइक फॉर एग्जांपल वी वर जीरो इन अहमदाबाद, सूरत एंड राजकोट. आई मीन आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ द वर्स्ट कंडीशन, but now in every ward of Surat, Ahmedabad and Rajkot we have a team. So now like you have to do some social engineering also. You have to focus on certain things that if I have somebody from the college or university, and then their group will join us. If we have only somebody from the slums,
then the people from the slum will join. So the एक limited जो scope में हम लोग काम कर रहे थे, हमने उसको थोड़ा widen किया है, and now the many youngsters are joining, but still I would say अभी मंजिल बहुत दूर है. Thank you, sir, for your wonderful reply. The second question is from Sneha, but Sneha, I think she's lost a connection. So I'll ask on behalf of her. So Sneha is asking, we heard you are reviving the Seva Dal nationwide. It's very encouraging, but such a massive exercise will take a lot of time. And usually volunteering takes around like 30 to 40 years. What is the time frame you're looking for, and how are you planning to achieve the results? स्नेहा यहाँ नहीं है, पर स्नेहा को ही मैं रिप्लाई करता हूँ ऑन लाइक आपने जो पूछा उसको लेकर. No, certain process will take like one generation. I don't doubt. मतलब वो बात भी उनकी सही है. But certain things you don't need to wait for a generations like or like 1.5 generation, 30 years or 20 years or something. क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो and let me give you example. We were just having 12,000 members in 2018 June when we reconcile our पूरा जो whatever के कितने लोग हैं कितने हैं नहीं. So 1985 में we were more than lakhs volunteers and वो reduce होते हुए 12,000 हो गया था. But recently अभी हमने जब अपना membership का पूरा शुरू किया है तो 2.5 years में हम लोगों ने 2,60,000 तक पहुंचे. अभी एक movement के तौर पे हम लोगों ने चलाना शुरू किया. So now increasing like in, I think most probably end of this year we will be more than 10 lakhs. तो ये असंभव नहीं है. आपके पास वो एक समय होता था जब कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो अचीव कर लेते थे. अब सब कुछ है. तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट्रलाइज वे में, बिकॉज वी हैव नो लाइक पूरे इंडिया को हमने 6 भाग में इसको एक डिसेंट्रलाइज करके 6 यूनिट के रूप में देख रहे हैं. हम एक जियोग्राफिक डिसेंट्रलाइजेशन किए हैं और एक थीमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किए हैं. तो उस दोनों को मिलाकर हम लोग काम कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली आई यूज्ड टू वर्क फॉर जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग होते हैं, जो काफी एनजीओज और आईएनजीओज जो बहुत बुरी स्थिति में है, उनको पूरा रिनोवेट उसका रीऑर्गेनाइज करने या उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम कुछ साल तक किया था. तो ये इसका एक एनालिसिस का जो तरीका है, आप अगर उसका स्लॉट एनालिसिस करके उसको करते हो, सो वी हैव एनालाइज, वी हैव डन दैट एक्सरसाइज एंड नाउ वी आर फोकसिंग कि इसको थीमेटिकली कैसे डिवाइड किया जाए और जियोग्राफिकली. साथ साथ में you cannot achieve your target if there is a no fixed job chart. Any organizations, when they have a clear goal, missions, very clear vision, then it's very easy for you to create a task and organizational structures. Once you create the suitable organizational structures, like for example in our political party, in Congress also and in many other frontals, there is no fixed numbers for a general secretary or and like a vice president. But Seva Dal came out with the clear structures that will have a X number of general secretary from national level to a block level. That will have a secretary with the depend on the size of the block or the size of the district. So everywhere we have now fixed numbers, and then the post which you created should have some kind of a roles and responsibility. Then only you can monitor. So we have decided that structures also, we have roles and responsibility. Everything is written, and now they are performing. And we have introduced evaluation system within the organizations. Even though we are voluntary organizations, it doesn't mean that we are not accountable to our organizations or not accountable to any in our country. So we have now evaluation systems, and based on that, we are evaluating. And then we have slogans: काम नहीं तो पद नहीं, अब कोई सिफारिश नहीं. काम नहीं तो पद नहीं, अब कोई सिफारिश नहीं. So Seva Dal mein, fortunately, now there is no like MPs or MLAs or any ministers can pressure us to give responsibility X, Y or Z. We go by merit. तो अब merit पे जब काम करते हो तो it's very easy. जो परफॉर्म अच्छा करता है उनको और जिम्मेदारी दो. So we are like and it is year 2020. Now we cannot play a test match. It is like the era of 2020 cricket type. So now we have to go in that directions with that speed. Yeah.
Yeah, actually, and as you rightly said, the organizational structure, with it, we can win 2024. If Sevadal has, with the same zest, if we perform in every state like you did in Gujarat, it's possible to take on the BJP and RSS. Thank you, sir. Third question is from Kanish Dutt. Is he here? Kanish Dutt from... Yeah, I've sent a request to unmute. Okay. Mr. Kanish, can you please unmute yourself? But I think I'm facing some network challenge here. Just a second. Yes, Kanish, you can go ahead. Hi, can you hear me? Yeah, yeah. Yes. Yeah. Well, I would request if you can just take my question because there's some network challenge that I'm facing. I'm not sure what. Okay. Should I go ahead with your question then? Absolutely. Okay. Yeah. So Kanish's question is that recently we have seen many Twitter handles of Sevadal created for the purpose of spreading Congress ideology on social media platforms. How do you think Sevadal members working on ground versus Sevadal on Twitter, which will have more impact? So what do you think will have a more impact, and how do you plan to take Sevadal to every household in rural and urban part of India? That's his question. So Yeah. So like in the June 2018, when we evaluated our social media, so we have no Twitter handle, we had no Facebook, we had nothing like on a social media. So we were almost like a zero. But किरण मोरस के इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने के बाद और बाकी लोग जुड़ने के बाद देन उसके डिस्कशन वगैरह हुआ एंड वी रियलाइज दैट वी नीड टू हैव क्रिएट अ स्पेशल टीम फॉर दैट. तो ये सोशल मीडिया जो वन ऑफ द सिक्स्थ विंग सेवा दल में उसको क्लियर जो है वो क्रिएट किया गया. और नॉट ओनली सोशल मीडिया, आई वुड से प्रचार एंड प्रसार इज अ मेन एंड सोशल मीडिया इज अ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दैट आवर प्रचार प्रसार. सोशल मीडिया में एक बात है कि भारत में ट्विटर लोग कितना लोग यूज करते हैं. इवन दो वी हैव क्रिएटेड ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स इन मेनी लाइक ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड आल्सो माइन आल्सो इज देयर. और तो ट्विटर हैंडल का एक अपना एक रोल है. सो लाइक थ्रू ट्वीट यू कैन इन्फ्लुएंस ओपिनियन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स. बट द बेस्ट वे टू, अगर आप पब्लिक ओपिनियन को अगर कुछ करना चाहते हो और उनको तक पहुंचना चाहते हो, घर घर में पहुंचना चाहते हो, देन इट्स लाइक फेसबुक और इंस्टा. यंग जनरेशन को आप इंस्टा के जरिए पहुंच सकते हो और फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो इज द मोस्ट इजी वे टू रिच एवरी हाउस. तो अभी सेवादल आई थिंक फेसबुक के माध्यम से काफी कोशिश में है कि बहुत लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, उसको हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं. आई वुड से अभी जो सोच है, जो एक जितना हमने सोचा था उसका 5% हुआ है, बट उस 5% का इम्पैक्ट है वो इतना जबरदस्त है. इफ वी कैन अचीव दैट 100%, लाइक हमने सोचा है कि हर स्टेट में विल हैव अ सोशल मीडिया का अलग अलग जो एक थीमेटिक ग्रुप होगा, एक है जैसे क्रिएटिव ग्रुप है. सो लाइक द क्रिएटिव ग्रुप विल क्रिएट सर्टेन न्यूज और व्यूज और वॉट एवर लाइक वो आता है उसको क्रिएटिव तरीके से हाउ टू अपलोड दैट, मतलब उसको एक कंटेंट पूरा है उसको क्रिएटिव तरीके से रखेगा. देन उसको कम्युनिकेट करने का जो टीम है हमारा, जो फेसबुक पे या इंस्टा पे और उसको लेकर, तो विल क्रिएट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सोशल मीडिया के जो हमारे माध्यम है उसके हिसाब से उसके डिफरेंट इंचार्ज वगैरह बनाकर उसको काम करेंगे. एंड फॉर दैट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल ये विद इन 6 मंथ हम लोगों को एक टीम खड़ा करने का हमारा बहुत एक इच्छा भी है और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं लगातार. एंड आई ट्राई टू इंटरेक्ट विद द इंचार्ज ऑफ द स्टेट सोशल मीडिया लाइक वंस इन 3 month और समटाइम्स 4 month. तो हम कोशिश करते हैं कि उनके जरिए हम लोग इसको आगे बढ़ाएं. बट आई वुड से कि जितना सपोज भाजपा का सोशल मीडिया में प्रभाव है उसके कंपेयर में वी आर नथिंग येट, बट चेंज तो हो रहा है.
जैसे नमो का फेक ट्विटर्स फॉलोअर्स के सामने राहुल जी के साथ जो है वो रियल ट्विटर फॉलोअर्स होने की वजह से लाइक्स है वो उसकी ज्यादा होती है कंपेयर टू नरेंद्र मोदी। लाइक रिसेंट 6 मंथ का अगर आप उसको ट्रेंड को देखें तो we would like same way, we don't want to have this fake Twitter followers or Facebook page पे like करने वाले, but real volunteers, because they have a paid volunteers. I mean, no, I won't say volunteers, paid workers, and we have a volunteers. So पेड लोग होते हैं वो जब तक उनको पे मिलता है तब तक का काम करेंगे, जितना पे मिलता है उतना काम करते हैं। बट जो वॉलंटियर्स होता है वो बाय हार्ट और अपनी क्योंकि बिकॉज दे बिलीव इन इट तो करते हैं। तो वी वांट टू क्रिएट द फोर्स ऑफ वॉलंटियर्स उसके थ्रू ये। और उसके लिए सेवा दल का एक लिमिटेशन भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो पुराने सेवा दल के जो साथी थे 100% कमिटेड फॉर अ पार्टी, 100% कमिटेड फॉर आइडियोलॉजी, बट वो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और उसके साथ उसका कोई ज्यादा जुड़ाव नहीं था, जिसकी वजह से ये बड़ा बैरियर था। और जो न्यू जनरेशन जुड़ रहा है अभी सेवा दल में, they are very friendly to technology. We'll do a training program also, and I'm sure that people like you will join more and more, तो हम इसको अचीव कर पाएंगे। Yeah, thank you, sir. I'm sure we'll do much better than on social media in future. Do we have time for like 3 more questions? I'm fine. I'm here in Delhi, and right now I'm free. I have no problem. Okay. So the next question is from a volunteer. He's asking, if we see Sevadal people with uniform and parade, most of the youth do not generally like the uniform. So how are you planning to address this? I think I have responded to these questions already, and I said that now this dress code and this with white shirt, white pant, white cap, like Gandhi Topi, it is compulsory when we do flag hosting program, not for any other protest or any other activities. So like today I'm wearing the normal dress, and even yesterday when I participated in Haryana border Bahadurgarh in farmers movement, I was in a normal kurta pajama. Even day before yesterday also I was in Uttar Pradesh border Ghazipur, I was in a normal dress. So there is no compulsion now. हम लोग ये कहते हैं कि the dress code is required for a certain purpose, not always in everywhere. It is only when we do the flag hosting rituals, and that is for a particular team, not for everyone. Okay. Yeah. So it's not a barrier now. So you can like wear any colorful, because earlier it was just plain white, right? Yeah. You can wear, like even for women also, like young generations, like young girls also. It's now they can wear blue leggings, blue kurta, blue leggings or blue pajama, no problem. And they can wear even t-shirt or kurta, white kurta, when even in a flag hosting program, I'm saying. Okay. So even like for other protest or other program, there is no compulsion. Okay. I hope his question is answered. So the next question is, can you please elaborate more on various service-oriented programs and how can one enroll and start working? Like from from the Congress volunteer groups, how can we join Sevadal, or can be more, participative in Sevadal activities? Yeah. So if you see that even historically also, Sevadal had 9 different wings for a Jan Seva. But unfortunately, slowly it reduced to the one only as Sevadal. But in future, we would like to create a different wing who can serve society, who can like work for our communities, like a Shiksha Seva Sansthan or Shiksha Seva Samiti, Paryavaran Seva Samiti. Then we have a Arogya Seva Samiti. So every aspect, whatever is needed, is somebody take an initiative. So already for a Jan Seva, we have officially asked every district unit also to create at least 6 Jan Seva Samitis, and through that Jan Seva Samitis, we can organize many program, blood donations or education program or even sports activity. So like it's like now the sky is limit. If somebody wants to do something with the community, if they want to do a farm protest with the farmers, they can do. Sevadal can do
organize a farmers protest. Sevadal can organize labor rights protest, anything. So there is no, हम लोग इसके लिए कहते हैं कि earlier it was like somebody ask you to do something, ऊपर से पूछा जाता था, कहा जाता था, जब तक आदेश नहीं होगा, जब तक निर्देश नहीं होगा, तब तक सेवा दल एक्टिव नहीं होता था. अभी पूरा डिजाइन चेंज है. अभी सेवा दल के हर कार्यकर्ता को कहा गया है कि आप स्वयं निर्देशित हो, स्वयं निर्देशित. तो स्वयं निर्देशित का मतलब है whenever you see any injustice, you see inequalities, you see any kind of a balatkar, bhrashtachar, atyachar, anything you see, and if you think that this is not right, जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, ये गलत है, तो हर गलत के सामने आप आवाज उठाओ, वहीं से काम शुरू करो, तो आप स्वयं निर्देशित हो. तो सेवा दल के वॉलंटियर्स नाउ दे आर फ्री टू डू डायरेक्ट एक्शन, मीन्स non-violence action, not the violent one. So non-violent actions you can start, and जहां कहीं आप हो अपना प्रतिरोध अपना वहां पे कर सकते हो. Okay. So the last question is again from a volunteer. So इनका सवाल है कि if a volunteer is a teacher or a doctor or like a software engineer, how can they be a part of Seva Dal as a part-time volunteer? Like similar to the earlier question, like how can you join? Yeah. I think we have now to join Seva Dal movement. So anybody from India can join Seva Dal through that our even online join Seva Dal. So Kiran can share that link also, and later on this Zoom, so you guys can get it, and also you can spread this. So anybody who, and also there is in that join Seva Dal format, when you link to that, there is options that what exactly you want to do. Because if somebody is doctor and then they wants to work for a health sector, or there somebody wants to work for a, so any the sectors you want to work, you have options there. You can select that options, and Seva Dal team will approach you in future. So आने वाले समय में we want to create health, education, पर्यावरण, then also rural development ka, then social service sectors. So we are going to create Jan Seva Kendra in every district. That is what our dream is. And then later on up to block level. So wherever anybody wants to work, they can join Seva Dal and they can start initiative, and they contact Seva Dal people, and then together Seva Dal and the new volunteers, they can work together. And for that, even identity की भी जरूरत नहीं है. Even आपको सेवा दल के फॉर्मल बैनर की भी जरूरत नहीं है. You can start with, because one name is very clear, the Seva word should come in between wherever you work, so one can identify that internally that okay, these are the initiatives which we are doing it. Okay. Does anyone have more questions? Like since sir has time, we can take few more, or else we could like conclude. All right. So I call upon Shanti. I would like to question. Sorry. In that case, because I always go with other tasks also. मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इस भारत को, हमारे सपनों का जो भारत है, हमारा जो ड्रीम इंडिया है, उसको आज बड़ा परेशान करने का कोशिश और एक अलग आइडियोलॉजिकल सोच उसके पर डोमिनेंट हो रही है. उसको बदलने का जो एक प्रयास है, एक संघर्ष है, आप लोग उसमें क्या सहभागी बनोगे? क्या आप उसमें बोल सकते हो कि आइए आप कांग्रेस में हो, विद कांग्रेस हो, ये हो, वो हो, तो यूनाइटेड कांग्रेस, तो जो आप सब हो सकते हो, बट फॉर लाइक सेवा दल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है इस काम के अंदर आगे बढ़ने के लिए. तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन सेवा दल? वुड यू वर्क फॉर अ सेवा दल? कैन यू एनरोल मोर वॉलंटियर्स टू द सेवा दल? आप क्या कर सकते हो? अगर कोई उसके बारे में भी अपने उसमें लिख सकता है पॉइंट. I don't think everybody can speak right now, but can write and say कि उनका क्या सोच है. Yeah. Sir, I think one more person, Alex, has a question. Alex, can you go ahead with your question? Yes, sir. Thank you for giving me the opportunity. Rajesh sir, I think you are doing a good job, and we are seeing the Seva Dal revival also. So I've been closely, even though I'm not a formal party member, I'm actually closely
associated with the Congress ward level activities and all in my place. My question is that I think the main challenge for Congress right now is the lack of committed cadres. I think that can be bridged with the help of Sevadal. And I think Sevadal has a great future. But I think there is one point which we are currently missing, and that is not being addressed anywhere. That is the cultural angle. So that is something which actually the RSS is trying to hijack it. They hijacked it, and they try to win it actually. The 2024, to me, looks like it's a cake for them. But if we want to counter them, we have to counter them culturally also. So in fact, I think this right now we have a very less amount of time towards 2024. It's just 3-4 years down the line. And again, we don't have the money power as well. I mean, I'm saying we don't have the money power and muscle power to counter them in this fashion. So coming from a Kerala guy, I've seen the way the communist works actually. So even though they don't have this kind of money power, but they were able to win the elections with some minute tweaks. So which I feel that which will be helpful for Sevadal as well. So I think right now there is one question like how to win in the urban centers. So urban centers, if we want to win, it's like in India, it's a bit difficult because the upper middle class is more towards the neoliberal policies. Now my question here then, if we can put a good ambulance service, at least once in a month, if we can if we can reach out to the slum areas in urban centers, at least that will show our presence actually. It will increase our presence. And the way I also there should be some festival wing kind of. So we should be celebrating all the festivals of India. And that will actually earn more goodwill for us. So these two programs, and one more is that one ex-military, I think ex-military persons, if we can enroll in Sevadal and provide the youngsters the exam trainings, right? For example, for army training as well as for the state public service training. If we can organize such kind of things, I think we can elaborate more foothold in all the states. I think these are the good suggestions. I think हम लोग भी इसके बारे में सोच भी रहे हैं और कुछ शुरू भी किया है. Like cultural activism almost हमारा खत्म हो गया था, तो अब हम उसको रिवाइव कर रहे हैं. Because Sevadal used to sing a song, and बहुत किसी ने भी सवाल भी पूछा कि Sevadal का सॉन्ग कौन सा है. मुझे लगता है कि वो मेरी एग्जाम ले रहे हैं, ऐसा मुझे लगा. बट एनीवे, Sevadal के जो सॉन्ग थे उसमें आगे आगे बढ़ते कदम वाला जो है वो Sevadal के साथियों को बड़ा अच्छा भी लगता था. उसके अलावा बहुत सारे जो गाने हैं, स्लोगन्स हैं, वो कल मैं जब यहाँ प्रोटेस्ट में जुड़ा तो हमारे 3 स्लोगन Sevadal के दिए हुए हैं, वो अभी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. हम थोड़े जाके और पॉपुलर कर रहे हैं उसको. तो Sevadal ने दिए हुए नारे, Sevadal के अपने गाने और दूसरे नए समय में नए गाने भी, उन सबको भी. तो कल्चरल एक्टिविज्म की भी जरूरत है. हमारा में कल्चरल एक एक्टिविज्म का ग्रुप तैयार करने का भी हमने शुरू किया था. अनफॉर्चुनेटली उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं. तो इवन हम लोगों ने एक प्रयोग और भी किया है कि बाबा रामदेव, लाला रामदेव बन चुके हैं पूरा योग के उसमें. तो हमने हिंदुस्तान योग संस्थान करके हम लोगों ने शुरू करने का एक इनिशिएटिव लिया था, जिसका थोड़ा बहुत काम आज भी हो रहा है. और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में योग है वो धंधा नहीं बन जाए, योग है वो इस राष्ट्र निर्माण के काम में कुछ आए. तो उसके लिए भी हम लोग काम, तो जितने भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, आई एग्री. और किसी भी वी लैक रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज अ बिग इश्यू फॉर अस. पर मैं देखा हूं कि रिसोर्स की वजह से बहुत कुछ नहीं रुकता है. कुछ रुकता है तो आपके कॉन्फिडेंस की वजह से रुकता है, आपके इनिशिएटिव्स की वजह बिना रुकता है. अगर आपका इनिशिएटिव है, आपका कॉन्फिडेंस है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. और यह है कि सब कुछ सेंट्रलाइजेशन के जरिए करने की जगह पे डिसेंट्रलाइज्ड वे में बहुत कुछ होना चाहिए. एंड विल सपोर्ट दोस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स जहां कहीं कुछ लोग कर रहे हैं. अभी जैसे प्रशिक्षण वाज लाइक ऑलमोस्ट स्टॉप फॉर 10 years 12 years, सब कुछ बंद था. अब प्रशिक्षण चल रहा है. कोरोना की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो अभी हमने वो भी बैरियर तोड़ दिया कि कोरोना में प्रशिक्षण नहीं हो सकता है. रिसेंटली हमने
अभी गुजरात में एक प्रशिक्षण कैंप किया कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल को साथ में रखते हुए. तो नाउ एवरीबॉडी इज एग्री एंड लाइक टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू मीट इन अजमेर. हम अजमेर में कल इकट्ठा हो रहे देश भर से 200 सेवा दल के जो सीनियर ऑफिस बेरर हैं, हम लोग वहां पे मिल रहे हैं आने वाले समय की रणनीति को तय करने के लिए. आपके सुझाव वहां पे हमको काम लगेंगे, मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूं. धन्यवाद. Thank you, sir. I now call upon Shanti to conclude. Shanti, are you there? Priyamda, thank you very much. And thank you, Shri Lalji Desai, for imparting your precious time on highlighting the role of Sevadal और उनके जो motto है, like the one which is like thinking very differently, not as a pracharak and more into a vicharak, vichardhara honi chahiye. For especially for the fight for human rights. So that is one thing which is a very good job that the Sevadal is doing. So yeah, definitely, and especially आप जो हमारे जो the young generation जो है promoting the youth for a more liberal working environment, especially the जो उनका जो tag था कि they do not want to work with a dress code, and identifying that problem and eliminating it with a more user friendly dress code with the logo of fashion to passion. That was really something which the Sevadal is working towards the youth, so that it inspires the youth to come across, become volunteers and work towards a better and for the development of the country. And I also thank all the members who have participated in this webinar, and the various questions. I hope most of the questions, the queries which the participants had has been answered to. And before we conclude, can we please everyone stand up for the Jana Gana Mana? शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे. Okay, thank you everyone once again, and also Shri Ralji Desai, once again thank you so much for your precious valuable time. And so now I would be disconnecting the webinar. Yeah, thank you all. Yeah, thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye bye.